السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال عز من قائل في محكم التنزيل بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی اور کبریائی اللہ وحدہ لا شریک ذات کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، جس کا کوئی شریک اور ساجی نہیں ہے، جو مدبر الامور ہے، جو اس کائنات کا نظام چلاتا ہے۔ وہی ذات عبادت کے لائق ہے، ہر قسم کی عبادت، چاہے وہ دعا کی شکل میں ہو، وہ نماز ہو، وہ روزہ ہو، وہ زکوٰۃ ہو، وہ قربانی ہو، ہر قسم کی عبادت صرف ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور اسی کا حق بنتا ہے کہ اس کے لیے تمام قسم کی عبادت کی جائے۔ اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ جس رب العزت نے ہمیں اپنے مطیع اور فرما بردار بندوں میں بنایا، یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے، اور ہمیں اس احسان کا اللہ رب العالمین کے لیے شکر ادا کرنا چاہیے۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر تم اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو اللہ رب العالمین ان نعمتوں میں زیادتی فرمائیں گے۔ وَإِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے کفران نعمت کیا، ان عذابی لشدید، گو کہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا شکر نہ کرنا اللہ رب العالمین کے عذاب کا باعث ہے۔ تعریف کے بعد درود السلام ہو کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں اللہ رب العزت نے اس کائنات کی طرف آخری نبی اور آخری رسول بنا کر مبعوث فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنتا ہے کہ ان پر درود السلام بھیجا جائے، کیونکہ اللہ بھی اور اللہ کے فرشتے بھی درود رحمت بھیجتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ تو مومنین کے لیے واجب ٹھہرا، مومنین کے لیے ضروری ٹھہرا کہ آپ ہر حال میں درود و سلام بھیجا کرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کی ذات پر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر حال میں درود بھیجنا ہی پڑے گا ایک مسلمان کو، ایک مومن کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ، اور خصوصاً جمعہ کے دن زیادتی فرمانے کے لیے حکم دیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہر وقت درود پڑھنا ہے، لیکن جمعہ کے دن اس کی کثرت کی جانی چاہیے۔ درود السلام کے بعد میں نے آج آپ کے سامنے سورہ کہف کی ایک آیہ مبارکہ کی تلاوت کی ہے، تو آج کے اس جمعہ کے موقع پہ انشاءاللہ العزیز اسی آیہ کے تناظر میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے صحیح کہنے کی توفیق عطا فرما، اور پھر ہم سب کو عملانے کی بھی توفیق عطا فرما۔ دراصل
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कायनात के अंदर जब इंसान को वजूद बख्शा, तो कायनात के अंदर सबसे पहले जिस इंसान ने कदम रखा इस कायनात पर वो थे हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। उसके बाद ये इंसानियत का सिलसिला शुरू हुआ और अभी इस वक्त तक और आगे कयामत तक ये सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कायनात के अंदर जहां बहुत सारी मखलूकात पैदा फरमाई, जहां जिन्नात हैं, जहां चरिंदे परिंदे हैं, जहां जानवर हैं, वहां अल्लाह रब्बुल आलमीन की एक मखलूक इंसान भी है। और इंसान इन सारी मखलूकात के अंदर सबसे आला और अरफा है। तो लेकिन आला और अरफा उस वक्त है जब वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के तरीके के मुताबिक, अल्लाह रब्बुल आलमीन के उस उसूल के मुताबिक जिंदगी गुजारे। वरना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया उलाइका कल अनाम बल हुम अज़ल। ये तो जो इंसान आप देख रहे हो, ये इंसान अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद पर अपनी जिंदगी नहीं गुजारता तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर फरमाया उलाइका कल अनाम, ये तो चौपाए हैं, ये तो जानवर है। नहीं फरमाए बस जानवर है, बल्कि बल हुम अज़ल, बल्कि ये जानवरों से भी गए गुजरे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जिस इंसान ने अपनी जिंदगी के वजूद को समझा वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास आला और अरफा है। और अगर जिस इंसान ने इस दुनिया में आकर दुनियावी एतबार से बहुत आला मकाम अता किया, बहुत तरक्की की, बहुत आला ओहदे पर फाइज रहा, या दुनियावी एतबार से जो जो मुमकिन हो पाता है वो सब किया, लेकिन अगर उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद समझ नहीं आई, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मार्फत नहीं हुई उसको, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वो जानवर है। न कि सिर्फ जानवर, बल हुम अज़ल, बल्कि जानवर से भी गया गुजरा है, उससे भी बदतर है। इसका मतलब यह हुआ कि इंसानियत की दो किस्में शुरू में हो गई। एक तो वो जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिनको आला और अरफा बनाया, एक तो वो जो जानवर है या जानवरों से भी बदतर है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सारी इंसानियत को का मकसद वजूद जो कुरान करीम के अंदर फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, वरना इनका कोई और काम नहीं है। खाना पीना, चले जाना, नाम रख लेना, मुसलमान काफी हो गया, नहीं। ईमान जब एक इंसान ने लाया, कलिमा पढ़ा अल्लाह का, कलिमा पढ़ा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उस पर लाजिम ठहरता है कि वो इस कलिमे को जुबान तक महदूद न रखे। अल ईमान इकरारुम बिल लिसान व तस्दीकुम बिल कल्ब वल अमलु बिल जवारिह। ईमान कहते हैं तीन चीजों को, जुबान से इकरार करना, दिल से उसकी तस्दीक करना, और आमाल से, ये जवारिह से यानी आज़ा से अमल करना। अगर कोई इंसान जुबान से ईमान लाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है, नहीं काफी होगा, क्योंकि मुनाफिकीन भी पढ़ते थे जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह। और दूसरा इंसान जो जुबान से पढ़ता है, दिल से इकरार करता है, आमाल नहीं करता, कोई फायदा नहीं उसके ईमान का भी। तीसरा वो है ईमान लाया तो ये कलिमा पढ़ा तो उसको तीन चीजें लाजिम है। पहले ईमान, अपने आप को इस एंट्री के लिए, इसके अंदर लाने के लिए, इस्लाम के अंदर दाखिल होने के लिए इकरारुम बिल लिसान, जुबान से इकरार करेगा, दिल से उसको तस्दीक करेगा और आमाल भी करेगा, अमल भी करेगा। उसको नमाज भी पढ़नी है, ईमान लाने के बाद रोजा भी रखना पड़ेगा, उसको ज़कात देनी है, उसको हज रखने, बाकी जितने अमाल हैं वो सारे करने हैं। वरना ईमान और आमाल स्वालिहा लाजिम मलजूम है, अगर एक नहीं तो दूसरा नहीं। मतलब कोई इंसान खाली ईमान लाएगा, अमल नहीं करेगा, कोई फायदा नहीं। दूसरा इंसान जो आमाल स्वालिया बहुत करेगा, आमाल बहुत अच्छे करेगा, लेकिन ईमान नहीं लाएगा, कोई फायदा नहीं। आज मैं कुरान करीम से इसी की चंद मिसालें आपके सामने पेश करूंगा। आपको मालूम है तारीखी इंसानियत के अंदर दो इंसान जो सबसे खतरनाक थे,
जो अल्लाह के बागी थे, जो वक्त के रसूलों के बागी थे और अल्लाह के दुश्मन थे। नंबर 1 आपको मालूम होगा फिरौन, और नंबर 2 अबू जहल। ये बहुत सख्त तरीन इंसान जो है तारीखी इंसानियत में गुजरे हैं। इससे सख्त दुश्मन कभी इस्लाम ने नहीं देखे हैं। सबसे नंबर 1 दुश्मन। फिरौन की बात बाद में करेंगे, लेकिन पहले आएंगे अबू जहल पर, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में था। वो काफिर था, बहुत बड़ा दुश्मन था इस्लाम का। लेकिन आपको मालूम था उसकी क्वालिटी कितनी थी, उसकी सिफात कितने थे। नंबर 1 वो नमाज पढ़ता था अबू जहल। नंबर 2 वो काबा का तवाफ करता था। नंबर 3 वो जमजम का पानी पीता था और उसी से नहाता भी था। नंबर 4 वो काबा की खिदमत करता था। नंबर 5 मक्का के अंदर अगर कोई यतीम हो जाता वो उसके सर पे हाथ रखता था, उसको पालता पोसता था। नंबर 6 अगर कोई मिस्कीन होता सारे मक्का के अंदर उसकी खिदमत करता था अबू जहल। नंबर 7 अगर कोई बाहर से सारी दुनिया से, क्योंकि उस वक्त भी मक्का जो था एक मरकज होता था लोगों का, जो भी बाहर से मेहमान आते थे, जितने भी लोग आते थे मक्का के अंदर, उन सारों को खाना खिलाता था अबू जहल। इतने बड़े अमाल। और नंबर 8 जो सबसे बड़ा अमल था, जो इस्लाम की तारीख के अंदर सबसे ज्यादा ऊंट की कुर्बानी करने वाला था अबू जहल। 9 चीजें थी उसमें, 9 सिफात, ऐसी सिफात जो बहुत सारे मुसलमानों में भी नहीं होती है। इतनी आला सिफात का मालिक था ये अबू जहल। लेकिन इन सिफात का क्या हुआ, इतने अमाल का क्या हुआ? अरे जो काबा के एक सहन में सोया रहता था, जो तवाफ करता था, कुर्बानी करता था, जमजम का पानी पीता था, यतीम और मिस्किनों की कफालत करता था, मुसाफिरों को खाना खिलाता था, इतना सब होने के बावजूद क्यों जहन्नम में जाएगा? क्योंकि खाली अमाल काम नहीं करते। उसको चाहिए था इन अमाल के साथ वो ईमान भी लाता, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसको पढ़ना था, लाजमी था, जरूरी था, वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इकरार करता, वरना कोई काम नहीं आए इसके अमाल। नंबर 1। दूसरी मिसाल, कोई इंसान, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत करना ईमान है। अगर कोई इंसान मोहब्बत नहीं करता वो मोमिन नहीं हो सकता। यह फरमाया कुरान में भी है और हदीस में भी है, बहुत तफसीली है, लेकिन उसमें नहीं जाना चाहता हूं। कहना यह चाहता हूं, मोहब्बत ईमान की शर्त है। आप इस्लामी तारीख जब उठा के देख लेंगे, नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको जिस वक्त मोहब्बत की जानी थी उस वक्त एक आदमी ने मोहब्बत की, इतनी मोहब्बत जिसकी मिसाल दुनिया पेश नहीं कर सकती, मुसलमान भी नहीं। वो थे अबू तालिब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा। इतनी मोहब्बत जो अपना बेटा तोहफे में दे दे, उससे ज्यादा मोहब्बत हो सकती? जो सारे कुफार की दुश्मनी मोल ले ले, इससे ज्यादा मोहब्बत नहीं हो सकती। शोबे अबू तालिब का वाकया आपको मशहूर, जब नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफार मक्का ने बाइकाट कर दिया, न बात करनी है, न तिजारत करनी है, कुछ नहीं करना है, अलग थलग छोड़ दिया। ऐसे में साथ दिया किसी ने, वो साथ दिया अबू तालिब ने, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। लेकिन क्या हुआ? इतना प्यार, इतनी मोहब्बत जब अबू तालिब देखता है कुफार ने तो बहुत ही सख्त तरीन लहजा इख्तियार किया है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफ में, तो आ गए एक बार, कहा ए मेरे भतीजे, ए मेरे भतीजे, ये कुफार तुझे छोड़ने वाले नहीं है, ये तुझे कत्ल कर देंगे। हमारे खानदान को तो बहुत सारे दुश्मन हो गए, अब क्या करोगे? अगर एक काम करते, मेरा मशवरा सुनते, अपने घर में इबादत करो, मत बोलो लोगों को। तारीख ने क्या सुनहरी अल्फाज मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो लिखे हैं, तारीख खोल के देख लीजिए। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरे चचा जान, अगर आसमान का ये सूरज मेरे दाएं हाथ में डाल दोगे, आसमान का ये सूरज अगर मेरे दाहिने हाथ में डाल दोगे, और आसमान का ये चांद अगर मेरे बाएं हाथ में डाल दोगे, कभी भी नहीं हटूंगा तौहीद की दावत से,
कलमा सुनाऊंगा इन कुफार को। जो ही इसकी मजबूती और साबित कदमी देखी चचा ने, ए मेरे भतीजे, वल्लाही, क्या ही खूबसूरत अल्फाज बताए थे अबू तालिब ने, वल्लाही मुझे अल्लाह की कसम है, लन यसिलु अलैका लन यसिला इलैका बिजमइहिम, ए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए मेरे भतीजे, अबू तालिब अल्लाह की कसम खाता है, अबू तालिब काफिर अल्लाह की कसम खाता है, वल्लाही लन यसिला इलैका बिजमइहिम, ए मेरे भतीजे मुझे अल्लाह की कसम है, ये लोग जब तक अबू तालिब की जान में जान है तब तक तेरे ऊपर अगर उंगली उठाएंगे उनका बाजू काट दूंगा। इतनी मोहब्बत अबू तालिब कहते हैं। मरने का वक्त करीब आया। एक तरफ कायनात के इमाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भतीजा बैठा है, बीच में चाचा अबू तालिब बैठा है, और इस तरफ हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु। अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुश्किल कशा होते, अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में हिदायत होती, करीबुल मर्द थे, मरने वाले हैं, ए मेरे चचा जान ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, जन्नत में जाने के लिए अल्लाह से सिफारिश करूंगा, जन्नत में जाओगे। दूसरी तरफ हजरत अली कहते हैं, ओ अबूजान ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, जन्नत में चले जाओगे। एक नबी के बीच में, एक खलीफे के बीच में इतना आला इंसान एक तरफ, इतना आला इंसान दूसरी तरफ, बीच में अबू बैठे हैं, अबू तालिब नहीं पढ़ा कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक नबी और एक खलीफे के बीच में से उठाकर जहन्नम में फेंक दिया। कोई काम नहीं आई इसकी मोहब्बत, क्योंकि खाली मोहब्बत तौहीद के बगैर कोई काम नहीं कर सकती। इसीलिए लोगों, अगर ईमान लाया तो आमाल स्वालिहा भी करने जरूरी है। आमाल स्वालिहा के लिए जैसे ईमान लाजिम है, वैसे ही ईमान के लिए आमाल स्वालिहा भी लाजिम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर 3 औरतों का तज़किरा फरमाया है। 3 औरतों का तज़किरा अल्लाह रब्बुल आलमीन, मतलब यह हुआ, इससे बड़ी सआदतमंदी कोई हो ही नहीं सकती कि अगर एक औरत का निकाह नबी से हो जाए। इससे बड़ी सआदत हो सकती है? कोई नहीं हो सकती। नबी के बाद सबसे सआदतमंद, सबसे किस्मत वाला, सबसे खुशनसीब है वो औरत जिसका निकाह नबी से हुआ है, जिसका निकाह किसी रसूल से हुआ है। क्या किसी के कोई इंसान, कोई औरत नबी से निकाह कर दे जन्नत में चले जाएगी? कोई रसूल से निकाह कर दे जन्नत में चले जाएगी? इससे बड़ी सआदतमंदी हो ही नहीं सकती कोई। जो नबी के कपड़े धोए, जो नबी के लिए खाना खिलाए, जो नबी की खिदमत करे, सारी चीजें होने के बावजूद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 2 औरतों का तज़किरा फरमाया। 2 औरतों का तज़किरा कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे लिए 2 औरतों की मिसाल बयान करते हैं, इम्राअत नूह व इम्राअत लूतिन। नूह अलैहिस्सलाम की बीवी और लूत अलैहिस्सलाम की बीवी, दुनिया के अजीम शान, अजीमुल मर्तबा 2 पैगंबर, एक नूह अलैहिस्सलाम, दूसरा लूत अलैहिस्सलाम। इनके निकाह में 2 औरतें थी, एक नूह की बीवी थी, दूसरी लूत की बीवी थी। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन इन दोनों के बारे में फरमाते हैं, कानता तहता अबदैन मिन इबादिना सालिहीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन के 2 खास चुने हुए नबियों के निकाह में ये 2 औरतें थी। फखानताहुमा, लेकिन इन दोनों ने नबी के निकाह के में होने के बावजूद, नबी की खिदमत करने के होने के बावजूद, रसूल की खिदमत करने के बावजूद बड़ी सादतमंद औरतें थी। फखानताहुमा, लेकिन अल्लाह की तौहीद का इकरार नहीं किया, ईमान ही नहीं लाया। सब कुछ किया, मानती भी थी, सारा कुछ करती थी, लेकिन ईमान नहीं लाया। फखानताहुमा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इन्होंने नबियों की दावत की खयानत की, इन्होंने ईमान नहीं लाया। क्या हो गया फिर? फलम युगनिया अनहुमा मिनल्लाहि शैया। फलम युगनिया, यहां पर एक नुक्ता है, बहुत अहम है। फलम युगनिया अनहुमा मिनल्लाहि शैया, ये दोनों नबी भी
नूह अलैहिस्सलाम भी और लूत अलैहिस्सलाम भी इन दोनों को अल्लाह से बेनियाज नहीं कर सके, जहन्नम से नहीं बचा सके। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वकील अदखुला, तुम दोनों जहन्नम में दाखिल हो जाओ हमेशा हमेश के लिए। इसका मतलब यह हुआ नबी के हाथ में नहीं है किसी को जहन्नम से बचा दे, नबी के हाथ में यह भी नहीं है किसी को जन्नत में ले जाए, नबी के हाथ में यह नहीं है कि किसी के खताओं को माफ कर दे, नबी के हाथ में यह भी नहीं किसी को खतावार तस्वूर कर दे, ना ही नबी के हाथ में नफा और नुकसान भी है। जो नबी अपनी चहेती बीवी को जहन्नम से नहीं बचाएगा क्या कर सकता है? मतलब यह हुआ यह तमाम का तमाम मामला सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन का है, यह अल्लाह रब्बुल आलमीन का मामला है। नबी के निकाह होने, नबी का रिश्ते में होना काफी नहीं है लोगों, ईमान उसको भी लाना है, ईमान उसके लिए भी जरूरी है जो नबी के निकाह में ही हो, जो नबी के रिश्ते में ही हो, जो नबी के कराबत में हो। अगर ईमान नहीं लाया कोई फायदा नहीं उसका रिश्ते में होना, कोई फायदा नहीं हुआ उसके निकाह में होना। इसके बरअक्स अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक और खातून का तज़किरा फरमाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिरौन की बीवी का तज़किरा फरमाया, रब्बि इब्नि ली बैतन इन्नका फिल जन्नह वनज्जिनी मिन फिरऔन वनज्जिनी मिन कौमि ज़ालिमीन। दुआ करती है ये आसिया, सैयदा आसिया दुआ करती है। फिरौन मैंने पहले बता दिया था शुरू में, तारीख इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन फिरौन और अबू जहल। यहां फिरौन की बीवी का तज़किरा फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन। रिश्ता कोई किसी को नहीं रोक सकता जन्नत या जहन्नम में। यह वक्त का बादशाह फिरौन तारीख इस्लाम का सबसे ताकतवर इंसान, सबसे ताकतवर इंसान ना आज तक आया है और ना ही कभी आएगा। इतना बड़ा भयानक, इतना बड़ा अल्लाह का दुश्मन यह वक्त का बादशाह फिरौन। इसकी बीवी सैयदा आसिया, फिरौन मूसा अलैहिस्सलाम का गुजर होता है, ये महल देखता है बादशाह की, फिरौन की बादशाह फिरौन जो था इस बादशाह की आलिशान महल, बाहर खूबसूरत बाग बना हुआ है, खूबसूरत पार्क बनी हुई है, यहां से नौकर हैं, यहां से सिक्योरिटी लगी है, यहां से बड़े बड़े नहरें बहा दी हैं, सारी नेमतों को अपने सामने रखा है। देखता है पार्क में एक औरत सोई है, उसके दोनों हाथों में कील लगी हुई है, मेखें लगी हुई हैं, ऊपर से पत्थर डाल के आया है, पत्थर डाल के रखा है। आता है ये वक्त का पैगंबर मूसा, ए आसिया, ए खातून तुझे क्या हुआ? इतनी आलीशान महल के सामने सोई है, बादशाह की बीवी है, सारी दुनिया तो इसके इस दौलत पर, इसकी बादशाहत में ऐश और इशरत कर रही है, तुझे क्या हुआ? तुझमें तेरे हाथों में मेखें लगी हुई है, तेरे सीने में पत्थर लगा हुआ है। क्या ये खूबसूरत जवाब दिया सईदा आसिया ने। तारीख ने लिखा, ए पूछने वाला पता कौन था? वक्त का पैगंबर था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। ए पूछने वाले, क्या पूछते हो उस बादशाहत का, उस ऐश व इशरत का, उन महल्लात का, उस दौलत का, जिस दौलत के अंदर, जिस महल के अंदर, जिस पार्क के अंदर, जिन नौकर और चाकरों के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद समझ में नहीं आई हो, नहीं मानती है, कहती है मुझे ये दुनिया की ये दौलत कुछ नहीं देती, मुझे मजा ही नहीं आता, क्योंकि इस बादशाह की इस महल के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद नहीं है, इसलिए मुझे मंजूर ही नहीं है ऐसी ऐश व इशरत जहां पे तौहीद नहीं है। लोगों, तारीख गवाह है, तारीख गवाह है, ये अल्लाह का इतना बड़ा दुश्मन अपनी बीवी को हिदायत से नहीं रोक सका, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुश्मन की गोद से उठाकर जन्नत में फेंक दिया। अजब है, अजीब मामला है, नबी के निकाह में रहने के बावजूद उठाकर जहन्नम में, और फिरौन के निकाह में होने के बावजूद, अल्लाह के दुश्मन के निकाह में होने के बावजूद अल्लाह रब्बुल आलमीन उठाकर जन्नत में फेंक देते हैं। अजीब है अल्लाह रब्बुल आलमीन की कारीगरी। इसीलिए मैंने कहा अगर ईमान लाया लोगों तो आमाल स्वालिहा जरूरी है, अगर आमाल स्वालिहा है तो उसके लिए ईमान जरूरी है, दोनों चीजें लाज़िम मलज़ूम है।
इसीलिए इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं ईमान के ताल्लुक से, कहते हैं कि मेरे 1100 से ज्यादा असातिज़ा है, 1100 से ज्यादा असातिज़ा है मेरे, लेकिन एक ही बात जो सारे के सारे मुझे बताते थे, सब के सब, चाहे वो अरब का था, चाहे वो किसी और इलाके का था, चाहे वो किसी और जमाने का था, लेकिन वो कहते था या मोहम्मद अल ईमान यजीदु व यनकुस, ए मोहम्मद ईमान घटता भी है और ईमान बढ़ता भी है। मोहम्मद बिन इस्माइल अल बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि। इसीलिए मैंने कहा ईमान 3 चीजों का नाम है, इकरारुम बिल लिसान, तस्दीकुम बिल कल्ब वल अमल बिल जवारिह। जुबान से इकरार करना, दिल से उसकी तस्दीक करना और आमाल से साबित कर देना, आमाल से साबित कर देना। और आमाल से क्या होता है? फरमाया यजीद मिन ताह, ईमान बढ़ता है इताअत से, वयनकुसु मिनल मासियह, और कोई इंसान गुनाह करता है, नाफरमानी करता है, उसका ईमान घटने लगता है। सहाबाए किराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन कितने ही आमाल सालिहा के बारे में, कितना ही उनका एक बहुत ही कितना अजीब मामला था। हजरत शमासा रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, खूबसूरत हदीस है, सही मुस्लिम शरीफ के अंदर किताबुल ईमान के अंदर मेरे जवानों ने पढ़ी होगी हदीस। हजरत शमासा रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, कहते हैं कि हमारे घर में अम्र इब्न आस रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर में बहुत सारे लोग आए उस वक्त जब वो करीबुल मर्ग था, मरने वाला था, बीमार था। कहा जो ही ये इयादत करने लोग आए उसके घर में पहुंचे तो वो अपना चेहरा दीवार की तरफ उसने किया था और वो रो रहा था, जोरो कतार रो रहा था। ये अम्र इब्न आस रजी अल्लाह ताला अन्हु का बेटा आया, कहा ओ अबूजान तुम्हें क्या हुआ? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत नहीं सुनी है? एक दफा कहा, 2 दफा कहा, चेहरा अनवर किया अपने बेटे की तरफ अम्र इब्न आस रजी अल्लाह ताला अन्हु ने, क्या बेटा? कहा क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत नहीं दी आपको? आप क्यों रो रहे हो और अपना चेहरा दीवार की तरफ क्यों किया है? जवाब दिया, हाँ बिल्कुल, वाकई मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी है कि जिस शख्स ने पढ़ा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये कलिमा पढ़ा, इसका इकरार किया, आमाल किए, उसके लिए जन्नत है, उसके लिए खुशखबरी है। लोगों कहा हाँ, खुश हो गया, लेकिन कहा ए मेरे बेटे सुनो, मैं पता क्यों रो रहा था? लिमा युबकी के या बता, ए मेरे अबू जान तुम क्यों रो रहे हो? कहा मेरे ऊपर 3 जमाने गुजरे हैं। जब मैं बचपन में था, कहा मैंने सुना था मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, लेकिन मामला यह हुआ कायनात के अंदर सबसे बदतरीन चेहरा अगर कोई मेरे जहन में था वो था मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नऊज़ु बिल्लाहि मिन गज़बिल्लाह, मैं नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी करता था और मैं ये चाहता था मैं कब मौका पाऊं और मैं कत्ल कर दूं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब गज़ुल वजह अशद्दु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुरा कोई चेहरा ही नहीं मुझे लगता था। ये कौन कह रहे हैं? अम्र इब्न आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कहा लेकिन वक्त गुजर गया, यही वक्त मेरी जिंदगी में 1 साल 2 साल 3 साल रहा। ए मेरे बेटे अगर मैं इस हाल में मर जाता तो मैं जहन्नम में जाता। सुभान अल्लाह, क्या ही खूब फरमाया, क्या इसलिए रो रहा था? मुझे वो जमाना याद था जब मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बागी था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुझे दुनिया में सबसे बदतरीन लगता था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून का प्यासा था और चाहता था जब मिल जाए तो कत्ल कर दूं। अगर इस हाल में मेरी मौत हो जाती तो मैं जहन्नम में चला जाता। लेकिन ए मेरे बेटे ये वक्त गुजर गया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक वक्त मेरे दिल में इस्लाम की मोहब्बत डाल दी।
कहा इस्लाम की जो ही मोहब्बत डाल दी तो मुझे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब चेहरा मुझे कोई और था ही नहीं। मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा पसंदीदा चेहरा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लगने लगा। कहा जो ही मुझे ये कैफियत हो गई, मैं तशरीफ लाया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। ईमान लाना चाहता हूं, कलिमा पढ़ना चाहता हूं। फबसतु बियमीनी, मैंने अपने दाहिने हाथ को बढ़ाया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपना हाथ, दाहिने हाथ मुबारक मेरी तरफ बढ़ाया। बैत करते थे उस वक्त जो ईमान लाता था। ईमान लाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक वादा, एक बैत करता था, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं शिरक नहीं करूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं बदकारी नहीं करूंगा। इन चीजों पर बैत होती थी। अम्र इब्न अल-आस ने भी यही किया, अपना हाथ बढ़ाया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। हाथ बढ़ाया, जो ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपना दायां हाथ बढ़ाया, फकबज़तु बियदी, मैंने अपने हाथ को पीछे खींच लिया, हाथ ही नहीं मिलाया। माला का या अमर, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अम्र इब्न अल-आस, तुझे क्या हो गया? बैत के लिए हाथ बढ़ाया था, पीछे क्यों हटा दिया? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक शर्त रखो मेरे साथ, तब बैत करूंगा वरना नहीं करूंगा। क्या शर्त है? अम्र इब्न अल-आस रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, अपने गुनाहों का खौफ कितना था। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझसे वादा करो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे पिछले तमाम गुनाह माफ कर देगा, तब जाके बैत करूंगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीन चीजें बताई। या अमर, अल इस्लाम यहदिमु मा कान क़ब्लहु, ए अम्र इब्न अल-आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो कलिमा पढ़ता है अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके पिछले सारे गुनाह माफ कर देता है, नंबर एक। और दूसरा फरमाया, जिसने अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हिजरत की, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके पिछले तमाम गुनाह माफ कर देता है। तीसरी बात फरमाई, ए अम्र इब्न अल-आस, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जिसने हज कर दिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके पिछले सारे गुनाह माफ कर देता है। फिर हजरत अम्र इब्न अल-आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपना हाथ बढ़ाते हैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बैत करते हैं। बैत करने के बाद एक जो बात बताई उन्होंने, बहुत ही अजीब किस्म की बात थी। कहा, है मेरे बेटे, मैं इसलिए रो रहा था कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हैबत, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हया मुझे इतनी तारी हो गई, फिर मैंने अपनी आंखों से कभी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा ही नहीं देखा। इतनी हया थी, मेरी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं अपनी आंखें उठाऊं और ये नजर डालूं चेहरा अनवर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए मेरे बेटे, अगर मुझे कोई उस वक्त पूछता मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा कैसा था, तो ये अम्र इब्न अल-आस वो चेहरे की शक्ल बयान ही नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे हिम्मत ही नहीं होती थी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आंखें भर कर मैं देख लूं। फरमाया, अगर मैं इस हाल में मर जाता, पहले फरमाया अगर मैं उस हाल में मर जाता तो जहन्नम में जाता, लेकिन अगर आप इस हाल में मर जाता तो जन्नत में जाता। अर्जू, मुझे उम्मीद थी कि मैं जन्नत में चला जाता। लेकिन तीसरा हाल क्या हुआ? कहा, तीसरा हाल ये हुआ, ये कैफियत भी मेरे इस दिल में नहीं रही। जब दुनिया ने घेर लिया मुझे, दुनियावी बाकी चीजों में मैं पड़ गया, अब मेरी कैफियत ऐसी नहीं रही जैसी इससे पहले थी। मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कुछ दिखता ही नहीं था। अब थोड़ी थोड़ी चीजें इधर उधर भी, मैं थोड़ी मशगूलियत ने मुझे पकड़ दिया। ए मेरे बेटे, अब मेरी नसीहत सुन लो। अब मैं वसीयत करता हूं, अब मैं वसीयत करता हूं, मरने के करीब हूं। लोगों, आमाल स्वालिहा कितना जरूरी है, मरने के करीब है। कहता है वसीयत सुन लो। मेरी वसीयत ये है, सही मुस्लिम के अंदर किताबुल ईमान के अंदर इस हदीस को देखा जा सकता है। कहा वसीयत मेरी ये है, जब मैं मर जाऊं तो मेरे पीछे ये नवाहगिर औरतें नहीं होनी चाहिए।
मेरे पीछे ये चीखने चिल्लाने वाली औरतें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फरमाया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अगर कोई औरत, मुसलमान औरत जिंदगी में उसने नवाहगिरी की है, जो हमारी औरतों में अक्सर पाया जाता है, मैक्सिमम नंबर है इसका जो पाया जाता है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी ने अपने खाउद पर, किसी अपने भाई पर, किसी रिश्तेदार पर यह चीखा चिल्लाया होगा, जो आपको नवाह की तारीफ करनी जरूर, अफसारों ने देखा है, मैंने भी देखा है। फरमाया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कोई औरत, मोमिन औरत, मुसलमान औरत अगर नवाह किया, जिंदगी में ये नवाहगिरी की और अगर ऐसे ही मर गई तौबा के बगैर, फरमाया कायनात के इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उसको जहन्नम में डाल दिया जाएगा और उसका अजाब जो है बड़ा अजीब होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके ऊपर आग की कमीज पहना देंगे और खारिश की सलवार पहना देंगे, इसी अजाब में वो मुब्तला रहेगी। इसीलिए नवाहगिरी को नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त नापसंद फरमाया, अपनी खवातीन को इन चीजों से रोकना चाहिए। यही फरमाते हैं अमर इब्न आस, ए मेरे बेटे, मेरे पीछे, मेरे घर में ये नवाह करने वाली औरतें नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात फरमाई, क्योंकि वो हमारे माशरे के अंदर नहीं है लेकिन हदीस में है, वो भी बयान कर दूं। फरमाया, ए मेरे बेटे, जब मेरा जनाजा लेके जाओगे, मेरे पीछे आग नहीं ले जाना। वो कुफार ले जाते थे, उस पर मैं ज्यादा तबसरा नहीं करूंगा, वो क्या है, वो हमारे माशरे में नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन एक चीज जो उन्होंने फरमाई, आमाल स्वालिहा, लोगों, सहाबाए किराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, कायनात के अंदर वो नफूस हैं, वो नफूस कुदसिया हैं जो सबसे आला और अरफा है। नबियों के बाद, अंबिया के बाद आला सिफात के लोग वो सहाबाए किराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन है। लेकिन खौफ देखो, कहा है मेरे बेटे, अब जब तुम मुझे कब्र में डाल दोगे, लोग मेरे ऊपर मिट्टी डाल देंगे, मिट्टी डालने के बाद सारे रिश्तेदार वहीं खड़े रहना, वहीं सारे रिश्तेदार खड़े रहना, मेरे कब्र को चारों तरफ घेर लेना। घेर के क्या करना? उतनी देर तक घेर लेना जितनी देर तक एक ऊंट को ज़बह किया जाए, उसका गोश्त लोगों में तकसीम कर दिया जाए, क्योंकि ये अमर इब्न आस घबराता है कब्र की तारीकी से, क्योंकि ये अमर इब्न आस कब्र की तन्हाई से घबराता है। जब तक ये अल्लाह के वकील मुझसे सवाल करके वापस नहीं चले जाएंगे, ए मेरे बेटे, तब तक मेरे वो कब्र के ऊपर खड़ा रहना। क्योंकि मालूम है लोगों क्या होता है, जो ये एक इंसान को कब्र में डाल दिया जाता है, मैं इसके साथ कंक्लूड करूंगा, कब्र में डाल दिया जाता है, अल्लाह के फरिश्ते आ जाते हैं, खड़ा कर देते हैं, सवाल शुरू हो जाते हैं। और पता है क्या, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये इंसान जो ही उठाया जाता है, ये दुनिया के लोगों की, जो आप लोग, जो हम लोग कब्र के ऊपर जो बात कर रहे होते, जो चल रहे होते हैं, उस वक्त उस मैयत को अल्लाह रब्बुल आलमीन वो कुव्वत देता है, ये उस वक्त ये सुन रहा होता है, लेकिन जवाब नहीं दे सकता। सवाल जवाब खत्म, न सुन सकता है और न ही बोल सकता है, कयामत तक ना ही सुन सकेगा और ना ही बोल सकेगा। लेकिन उस वक्त फरमाया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, लोगों, जब तुम अपनी मैयत को दफन कर देते हो तो देर तक उसकी साबित कदमी के लिए दुआ किया करो, अलान युसल, क्योंकि इस वक्त उसको सवाल किए जा रहे होते हैं। सवाल तीन होते हैं, ईमान और अमल स्वालिहा के बारे में सवाल होंगे। कहते हैं मन रब्बू का, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या जानता है। जवाब वही दे सकेगा जिसने दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद को पहचाना होगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को पहचाना होगा, फिर अल्लाह की तौहीद, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के मुताबिक जिंदगी गुजारी होगी। दुनिया का बहुत बड़ा स्कॉलर, फिलासफर, पढ़ा लिखा, अगर इन चीजों से खाली होगा, नहीं जवाब दे सकेगा को वो अल्लाह के इन वकीलों का। अमर इब्न आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने
کہا اے میرے بیٹے جب یہ اللہ کے وکیل سوال جواب کر کے چلے جائیں گے تم بھی اپنے گھر کو چلے جانا. اللہ سے دعا کرتا ہوں اے رب کائنات ہمیں اللہ رب العالمین کی توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما, نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. وما علینا الا البلاغ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.